Welcome students. So I'm again providing you this revision lecture for this chapter called biotechnology. Biotechnology. So as you know, this biotechnology it is use of biological principles in such a way that mankind is benefited. In such a way that mankind is benefited. This is a definition that we already discussed. Then we said that this term biotechnology it has been coined by Carl Erecki, and the father of biotechnology. The father of biotechnology is Paul Berg. We remembered these 2 points. Then we said there's an organization called European Federation of Biotechnology. European Federation of Biotechnology. This European Federation of Biotechnology it defines biotechnology as integration of natural sciences, organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. So this is a definition of biotechnology according to AFB. It is written on your NCERT. We discussed this many times, so I will go forwards. Now we discussed that there are two branches of biotechnology. Or biotechnology is divided into two branches. There are two branches of biotechnology, or what can we say? Biotechnology is divided into two branches. There is so-called classical or old biotechnology, and there is so-called modern or new biotechnology. So we have classical or old biotechnology, and we have modern or new biotechnology. Classical biotechnology deals with non-genetic principles. It involves non-genetic principles to obtain products and services, while this modern biotechnology is involved in genetic as well as chemical principles. We cited various examples of old biotechnology or classical biotechnology. We said कि हम फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बनाते हैं या इथेनॉल बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन हम करते हैं. वी प्रोड्यूस इथेनॉल बाय सिंपली कल्चरिंग ऑफ द यीस्ट, एंड ये जो यीस्ट का कल्चर हम करते हैं और इथेनॉल प्रोड्यूस करते, ये आ जाता है हमारे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के, क्योंकि इसमें हमने कोई भी जेनेटिक लेवल पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की. हम फॉर एग्जांपल मैंने बोला था साइक्लोस्पोरीन प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लोस्पोरीन प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है, बाय कल्चरिंग ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोर्मम. तो ये भी आ जाता है हमारे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है. हम फॉर एग्जांपल
स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करते हैं बाय कल्चरिंग स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये भी आ जाता है हमारे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड बाय कल्चरिंग एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, तो ये भी आ जाता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। इट ऑल्सो कम्स इन अवर क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करना बाय कल्चरिंग एस्परजिलस नाइगर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो जिनमें हम विदाउट एनी मैनिपुलेशन एट द जेनेटिक लेवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन करते हैं, दैट कम्स इन द क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ जो हमारा न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रिंसिपल्स। इट इज बेस्ड ऑन genetic principles. Actually it is based on two principles. It is based on two principles, where we have the genetic principles and we have the chemical principles. एक तो जेनेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और केमिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। जेनेटिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व जेनेटिक इंजीनियरिंग, while as chemical principles they involve chemical engineering. अब क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग, इस चीज की तरफ हम ध्यान देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग refers to cut and paste of the DNA. Cut and paste of the DNA, ठीक है। It's also called as recombinant DNA technology. Genetic engineering is also called as recombinant DNA technology, and it involves cut and paste of the DNA. Cut and paste of the DNA. So what we do, we have an organism like this. It contains a gene that is that we want to transfer to some other organism, for example like this. It doesn't contain this gene, so what we do, we cut this gene from here and we transfer this gene into this organism. This organism number 1, this is organism number 2, and this thing that we have done, we have cut the DNA from this, cut a gene from this organism and transfer into this other organism. This is what we call as genetic engineering. The other technique is, the other principle is chemical principle, which involves the chemical engineering, and this chemical engineering, it refers to modification of the culture media. It refers to modification of culture medium in order to allow growth of selected organisms only. Selected organisms only. देखो हमारा जो कल्चर मीडियम होता है, बिफोर दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जब हम कल्चर मीडियम में कोई ऑर्गेनिज्म डालते और उस ऑर्गेनिज्म को उसमें कल्टीवेट करते, कल्चर करते, तो वो ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करता था, लेकिन उसके साथ कोई कंटैमिनेट बैक्टीरिया भी अगर आ जाता था, और उसके साथ कोई कंटैमिनेट बैक्टीरिया आ जाता था, ये मान लो ये कंटैमिनेट बैक्टीरिया है, तो अगर उसके साथ कोई कंटैमिनेट बैक्टीरिया आ जाता था तो वो कंटैमिनेट बैक्टीरिया भी वहाँ पे ग्रो कर देता था, जिसकी वजह से हमारा यील्ड कम हो जाता था। अब केमिकल इंजीनियरिंग जो है हमारे पास, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इस कल्चर मीडियम को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि इसमें हम ऐसे ऐसे कंपोजिशन रखते हैं इसकी ऐसे कि ये सिर्फ एलो करता है हमारे सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। मान लो ये रेड कलर, ये हमारा सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कल्चर करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ इसकी ग्रोथ एलो करता है। इसकी ग्रोथ जब ये सिर्फ एलो करेगा तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा यील्ड जो है ना, यील्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही दो
टेक्निक्स है या यही दो प्रिंसिपल्स है जो बेस बनाते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। एक तो जेनेटिक प्रिंसिपल्स जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाता है, और केमिकल प्रिंसिपल्स जिनमें केमिकल इंजीनियरिंग आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से जीन कट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पेस्ट करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशन करते हैं कल्चर मीडियम की सच दैट इट अलाउज ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स ओनली। इससे पहले क्या होता है, अगर हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, अगर हम उसको केमिकली इंजीनियर नहीं करेंगे, तो उससे कंटेमिनेंट्स भी ग्रो कर सकते हैं जो हमारा यील्ड कम कर देंगे। ठीक है, चलो नाउ उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने बोला जो हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने, जो हमें प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, यहाँ पर हमें यह क्या करना है, हमें फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा जीन है, इस ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा जीन है जिस जीन से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो हमें फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि जिसको कल्टीवेट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की तरह कि फिर हम उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स के केस में फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन चाहिए, मैंने बार बार एग्जांपल दी है इंसुलिन की। तो मान लो ह्यूमन सेल्स में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन पैनक्रियाज सेल्स, तो हम उनको कल्टीवेट नहीं कर सकते डायरेक्टली इन द कल्चर मीडियम। तो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ही क्यूबरसम प्रोसीजर है अगर ह्यूमन सेल्स को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं काम, हम ये जीन यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, और हम इसको किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर वो सिंपल ऑर्गेनिज्म मान लो कोई बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, फिर हम उसको कल्चर करते हैं एंड फिर ये जीन वहाँ पर एक्सप्रेस कराते हैं एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग वो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि हम कैसे ये जीन कट करेंगे, फिर हम कैसे ये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और फिर कैसे हम ऑब्टेन करेंगे वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन कैसे कट करेंगे, फिर कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म में, फिर कैसे उसको कल्चर करेंगे ताकि हमें प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे वो है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कौन कौन से टूल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे ये चीज़ करने के लिए, यानी एक जीन आइसोलेट करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए, फिर वहाँ पे उसको कल्टीवेट करके कल्चर करके प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने बहुत बार रिवाइज किया कि 3 तरह के टूल्स, 3 टाइप्स ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड है, 3 टाइप्स ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एक तो हमारे पास हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होता है, और हमें एक व्हीकल चाहिए होता है विच इज कॉल्ड एज वेक्टर, और हमें चाहिए होता है एक होस्ट। ठीक है, तो एक एंजाइम्स चाहिए जो हमें कट वगैरह करके देंगे जीन, वेक्टर चाहिए, वेक्टर एक इंटरमीडिएट डीएनए पार्टिकल होता है जिसमें हम लोड करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ये जीन जो है, दिस जीन दैट वी विश टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम, जिसका हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, दिस जीन इज कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन हमें चाहिए होता है, जिसका ट्रांसफर हमें करना होता है, दैट्स कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कट करने के लिए, फिर इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए हमें, एक तो हमें एंजाइम्स चाहिए कट वगैरह करने के लिए, फिर हमें एक वेक्टर चाहिए, एक ऐसा डीएनए होता है जो हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है टू द होस्ट सेल, एंड होस्ट सेल चाहिए होती है जिस होस्ट सेल में फिर हम इसको फाइनली एक्सप्रेस कराते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको डील करेंगे, पहले हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है,